Hallo liebe Freunde, schönen Tag. Wie geht es Ihnen? कैसे हैं आप सभी लोग? थर्ड पार्टी टूल से Sir, we are good. Okay, also dann fangen wir an. तो तौशिक है हमारे साथ में, तौशिक सिद्दीकी। कैसे हैं सर आप? हेलो तौशिक, हाउ आर यू? सुन पा रहे हैं तौशिक? आर यू एबल टू? तौशिक, आर यू देयर विद अस? Could you please unmute yourself and just say hi? Kevin, Joy. Good afternoon, sir. कैमरा प्लीज। स्वाति डागर, रिद्धि, अनुभव, तौशिक। कैमरा प्लीज। Kevin and Swati. Riddhi also. Yeah. Hello Kevin Riddhi. and Swati. Wie geht's dir? Hello, sir. Wie geht's dir? Was machst du jetzt? Hallo Heram, wie geht's dir? Hallo Sir, mir geht es gut. Und was machst du derzeit? Was machst du gerade? So, ich reise in Jodhpur. Ja, ich reise nach Jodhpur oder bin ich derzeit in Jodhpur oder ich lerne Deutsch, ganz einfach. Was mache ich? Ja, ich lerne Deutsch. Ja, Kevin, hallo. Guten Tag, Kevin. Good afternoon, sir. Yeah, good afternoon. Also, so Kevin, are you comfortable in English or Hindi? Like, which language would you prefer? So both will work, Hindi as well as English. Okay, good. Actually, in this masterclass, I try to keep my lectures in both the languages, like in English as well as in Hindi. तो अगर आपकी क्वेरी, अगर आपका प्रश्न हिंदी में है तो आप बेशक मुझसे हिंदी में बात कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है. And in any case, like if you would like to speak in English, so you are most welcome. Okay. Then we have with us Ashrat. We have with us Ashrat and Simran is also here with us. Okay. So guys, once again, welcome to this masterclass. Every week on Friday, I try to connect with a lot of people around the world. So that like anywhere, they are learning German or they are having, they are facing any doubt, I can just cater or just try to, help them removing their doubts. So basically, master class का purpose ये है कि आप लोग अपने doubts पूछिए, right? Hello Manpreet, how are you? How are you doing today? Can you just unmute yourself? Could you please unmute? Hello, sir. How are you doing today? Sir, I'm doing good. So, are you comfortable in English or in Hindi? किस भाषा में आप बात करना चाहेंगे? Sir, I'm comfortable in both the languages. Okay, that's great. That's great for me actually. I need a lot of multilingual, bilingual people in this class so that they can understand what I just wish to convey. So, without much ado, like let's start this masterclass. And hello everyone, my name is Hitesh Sharma, and Ishqome House Indian. Okay, I belong to India, and currently I am living in Jaipur, and my purpose for this masterclass is that like people around the world are learning German, but this masterclass is completely free of cost. So what is the purpose? Purpose is that like somehow anywhere, any doubts you guys have from A1, from A2, from B1, from B2, or like sometimes even in C1 also. Okay. So I am trying my best to resolve your queries, to remove your doubts. So first of all, like let's start with the beginner level. हम A1 से start करेंगे. So अगर A1 का जिन को भी कोई डाउट है तो जैसे इस मीटिंग में there is a facility you can raise your hand. जो Google Meet होता है, सॉफ्टवेयर में एक फैसिलिटी होती है आपका हैंड रेज करने का, वो है. तो हम सबसे पहले जो हमारे
जूनियर्स हैं, जो हमारे बिगिनर्स हैं, ठीक है। और अगर मेरे नाम पर आपको यूरो करियर इन्फो जो लिखा हुआ दिख रहा है, तो इसका भी एक इम्पोर्टेंस है, क्योंकि ये यूट्यूब चैनल का नाम भी है। तो यूरो करियर इन्फो जो यहाँ पे आपको इसमें दिखाई दे रहा है, आपके मेरे मेरे स्क्रीन पर मेरे नाम में, सो यू कैन ऑल्सो सर्च दिस यूट्यूब चैनल, क्योंकि हम जो भी ये लेक्चर्स होते हैं इनको हम वहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट पब्लिश कर देते हैं, और एनीवेयर लाइक इन द वर्ल्ड कैन हैव द एक्सेस, वी गेट फ्री ऑफ कॉस्ट। ओके, तो हिरम हैज रेज्ड हिज हैंड। तो हिरम, मोस्ट वेलकम, बताएं आपकी क्या क्वेरी है, प्लीज आस्क। Sir, I want to write a sentence. Who writes a letter to the father? So अपन जब इसको लिखते हैं जर्मन में, अपन लिखते हैं wer schreibt dem Vater einen Brief. तो अपन ने वर्ब का कॉन्जुगेशन किस बेसिस पे करा है वो समझ में नहीं आया मेरे को। Could you just please type your sentence in this chat box? Yes sir. Could you please just type this sentence? And so, what was this question? This question is where schreibt. So it's a very simple question actually. So where schreibt dem Vater den Brief? So what is this? Where schreibt dem Vater den Brief? Okay. So actually, like after like very long discussion and a very long explanation, it's like very easy. What you can do is that you can just read all these sentences. Where sind Sie? Where bist du? Dann wer seid ihr? Dann haben wir so wer bist du? Wer sind Sie? Und auch haben wir wer sind Sie, small z, like they, who are they? Okay, so the answer is like very clear, you know, like we need to conjugate this verb. This verb is like very simple. You always will be conjugating this verb with this der Vater. Okay, der Vater you would be conjugating, and der Vater is the third person, as I told you earlier. So basically you will be conjugating this verb with the third person, and third person is what? S or Z. So ich schreibe, du schreibst, sie schreibt. Okay, so where you would be conjugating it, you would be conjugating it. Likewise, you are having, you know, all these explanations over here. You know that how this verb is being conjugated, and yes, of course, like that explanation is also holds good that who will be writing. So who is the singular entity? ठीक है, तो आप लोग इस पूरे के पूरे एग्जाम्पल से इसको समझने की कोशिश कीजिए। इसमें साथ में एक मैसेज ये भी देना चाहूँगा कि वी शुड नॉट एंड वन मस्ट नॉट लर्न जर्मन इन द इंग्लिश वे, ठीक है। हमें क्या है कि जर्मन को निकाल करके वो इंग्लिश वाला जो वे है वहाँ से अगर हम करना शुरू करेंगे तो वहाँ पर हमें सही आंसर्स नहीं मिल पाएंगे। वी शुड लर्न जर्मन इन द जर्मन वे। That all you guys know, okay? So now who writes a letter to the father? Yes sir. अब अपन who पे आते हैं। एक बार अपन ये बात करते हैं कि जो who है उस पे आते हैं। तो Yes sir. इंग्लिश से चलते हैं अपन सबसे पहले कि इंग्लिश में अगर किसी ने बोला कि who writes a letter to the father, तो रिद्धि ने बोला I am writing a letter. Yes sir. किसी ने बोला कि फिर रिद्धि ने बोला, पहले तो उसने बोला नहीं आई एम राइटिंग, फिर थोड़ी देर बाद उसका ब्रेन चेंज हो गया तो बोल रहा नहीं हिरम लिखेगा, ही इज राइटिंग अ लेटर, ठीक है। या तो आई एम राइटिंग अ लेटर, ठीक है, और ही इज राइटिंग अ लेटर, या फिर यू फॉर्मल वाला अपन बोल सकते हैं यू आर राइटिंग अ लेटर। हाँ, यू आर राइटिंग अ लेटर, ठीक है। यस सर। ठीक है, समझ में आ गया। कौन कौन फादर को लेटर लिख सकता है? या तो तुम लिख सकते हो, या ही लिख सकता है, या आई लिख सकता है, ठीक है। तो बेसिकली ये जो तीनों ही लोग हैं, क्या ये प्लूरल है? क्या ये जो तीनों लोगों की बात हुई, आई, यू और ही, ये तीनों प्लूरल है क्या? नहीं, प्लूरल तो नहीं है। प्लूरल नहीं तो शायद सुनो सही, तो प्लूरल नहीं है मतलब कि इसमें से जो श्राइबन वाला जो था, जो नीचे जो ये होते हैं, मतलब एक ईयर वाला ऑप्शन रूल्ड आउट हो गया,
हाँ एक सीसी वाला ऑप्शन रूल्ड आउट हो गया और Yes. एक गियर वाला, ये तीन ऑप्शन तो रूल्ड आउट हो गया ना, बात खत्म हो गई यहाँ पे। यस सर। तो जो आप बोल रहे हो कि वेयर श्राइबन क्यों नहीं लिखा, वो तो बात ही खत्म हो गई। हाँ, अब इन तीनों में से अभी अभी आपने बोला अभी अभी आपने बोला कि सर यहाँ पे श्राइबन क्यों नहीं लिख रहे हैं। हाँ तो मिल गया कि आपको आंसर की श्राइबन क्यों नहीं लिखा है यहाँ पे, क्योंकि ये जो या तो मैं लिखूंगा या तुम लिखोगे या ही लिखेगा या हर लिखेगी, ठीक है, या शी लिखेगी, यही है ना बात। Yes, ये सब क्या सिंगुलर है। यस ये यहाँ से ये सारी बातें ये तीनों रूल्ड आउट हो गए। यस सर। ठीक है, अब आते हैं बात कि बेसिकली जो हु है ना, हु इज एक्चुअली रिप्रेजेंटिंग द थर्ड पर्सन। ठीक है, हु जो है वो कौन है, हु इज रिप्रेजेंटिंग एज जी, राइट। हु इज रिप्रेजेंटिंग जी। as Z, the third person. यस सर। Who is actually representing the third person? So because of that, you are writing. ठीक है, लेकिन अब इसमें जो आपने नहीं पूछा वो भी बता देता हूँ साथ में। सेंटेंस पढ़ा है आपने, where best do। यस सर। ठीक है, ये where best do इसके साथ में conjugation कर लिया, लेकिन साथ में इसी के साथ में यहाँ पे प्लूरल आ रहा है। यहाँ पे प्लूरल क्या आ रहा है, where zin जी। ठीक है, प्लूरल के केस के अंदर भी यहाँ पे आ रहा है ये, यहाँ पे क्या हो गया इसमें जी ले लिया यहाँ पे। ठीक है, तो बेसिकली हु राइट्स अ लेटर टू द फादर, वहां पर जो हमारा कॉन्टेक्स्ट है वो हमारा थर्ड पर्सन के साथ में है, लाइक ही इज राइटिंग अ लेटर, ठीक है, शी इज राइटिंग अ लेटर। ठीक है, तो बेसिकली हु इज राइटिंग, तो ही शी और इट, एनीवन। तो इट तो कोई न्यूट्रल कोई अपने है नहीं, तो ही और शी कोई व्यक्ति ही लिखेगा जो जीवित व्यक्ति है। पेड़ तो लिखेंगे नहीं, एनिमल्स लिखेंगे नहीं, तो इट अपने काम में आएगा नहीं वहां पे, राइट। बेसिकली here is Z, here schreibt, he is writing, sie schreibt, she is writing। ठीक है, ओके ओके सर। ऑल राइट। बेसिकली आपने जो, मैं वापस से इसको समरी कर देता हूँ इस क्वेश्चन की, कि इन्होंने पूछा कि where schreibt dem Vater einen Brief। आई बिलीव कि ये dem Vater क्यों किया, ये डाटिव है, ये einen Brief क्यों किया, ये आकुजाटिव है, ये तो आपको क्लियर होगा। और यहाँ पर बिकॉज हु जो है ये नॉमिनेटिव है, ठीक है, तो नॉमिनेटिव के साथ में आपको जो आपने कॉन्जुगेशन किया वो श्राइब्ड आपने यूज में कर लिया। ठीक है, यस सर। okay, now any other query like from someone else? Riddhi has raised your hand। Yeah Riddhi, say। सर जैसे अभी हेरम ने बोला था हु राइट्स अ लेटर टू द फादर, तो आपने बोला जैसे आई राइट अ लेटर या ही राइट्स अ लेटर ऐसे होगा, तो ऐसे भी तो हो सकता है वी राइट अ लेटर टू फादर। हाँ सही है। हाँ तो उसमें फिर श्राइबन आ जाएगा ना। नहीं, इसमें आप देखो, आप सबसे पहले जो करोगे तो डियर श्राइबन इसका जो आंसर दोगे, ठीक है, यदि हम सभी लिख रहे हैं, अभी मान लो सारे स्टूडेंट्स ही लिख रहे हैं, तो उसका आप आंसर दोगे डियर श्राइबन। ठीक है, हाँ अगर आप वैसे आंसर देना चाह रहे हो, लेकिन अब मैं समझ गया आपकी कहाँ पर जा रही है सुई, मैं समझ गया हूँ, तो मैं आपको आंसर दे देता हूँ। इन जनरल अगर किसी ने पूछा है, आप समझो आपका इंग्लिश में जो क्वेश्चन है ना, आपका इंग्लिश का क्वेश्चन है हु राइट्स, मतलब कि एक वचन में पूछ रहे हो आप, कौन लिखेगा फादर को लेटर, कौन। लेकिन अगर आप इंग्लिश के क्वेश्चन को पहले चेंज करो, सबसे पहले कौन लोग, कौन सब लोग, अगर आप ये पूछना चाह रहे हो, तो बेसिकली इट्स ऑल अबाउट व्हाट डू यू विश टू आस्क और व्हाट डू यू विश टू कम्युनिकेट। अगर आपके मन में कहीं ना कहीं ये भाव है कि नहीं मैं तो यही पूछना चाह रहा हूँ कि कौन सब लोग लिखेंगे फादर को लेटर, तो आप वेयर श्राइबन लिखो, उसमें आप लिखिए वेयर श्राइबन। अगर आपको यही कम्युनिकेट करना है, या आपको यही कम्युनिकेट करना है कि फादर को लेटर कौन लिखने वाले, कौन सब लोग, आपके दिमाग में ऐसे आ रहे हैं। बट इन जनरल प्रैक्टिस में क्या होता है कि अगर कोई इंसान से पूछ रहा है, या अपन ये सब क्लास में मान लो 50 बच्चे बैठे हैं और किसी ने किसी से पूछ लिया कि हु राइट्स द लेटर टू द फादर, तो वो कोई एक स्टूडेंट होगा ना, कि या किसी को टास्क दे रहे हैं बाय द वे, या मान लो घर पे मम्मी ने पूछा कि पापा को लेटर लिख देना है, और जर्मनी गए हुए पापा उनको लेटर लिख देना, बच्चों से पूछा कौन लिखेगा तुम में से। ठीक है, सो बेसिकली
So in the general context, like the answer is like belonging to the singular number, then you will be writing. Okay, sir. Okay. So wer schreibt dem Brief, dem Vater einen Brief? So this sentence is completely correct. Okay. Next, anyone who wishes to raise the hand for having any query from, yeah, Heram, please. सर जब कलर्स में एडजेक्टिव एंडुंगन का हम लोग सीख रहे थे कॉन्सेप्ट, तब एक चीज़ बताई थी मैम ने कि किसी कलर के पीछे अगर ए आता है एंड में, तो उसका नॉर्मल तरीके से नहीं होता है। जैसे रोज़ा हो गया कलर या लीला हो गया, तो उसका नॉर्मल तरीके से नहीं होता, उसके पीछे ई एन या ई अपन डायरेक्टली नहीं लगाते हैं। तो फिर उस केस में अपन मतलब क्या प्रॉपर वे होगा वैसे सेंटेंसेस बनाने का? नहीं, आप पहले सेंटेंस बोलो ना कोई। जैसे मैं सेंटेंस बनाता हूँ, आई लिव इन द पिंक सिटी, आई लिव इन द पिंक सिटी, तो इसमें मैं कैसे Ich wohne in der Rosa Stadt। तो जैसे अपन ने देर अपन ने डाटिव की वजह से लगाया था, तो ईएन या कुछ भी नहीं आएगा क्या? वो रोजा एज इट इज ही रहता है हमेशा? That will remain as it is। आप एक बार सेंटेंस लिखो, जर्मन में लिख के भेजो एक बार। यस सर। Ich wohne, दस देना एक बार। पोस्टमार्टम कर सकते हैं अपन किसी भी चीज का, कोई दिक्कत नहीं है। We can do any postmortem। क्या बोल रहे हो आप? इश वो ने इन और डेयर लगा दिया, इनको वेक्सल करके आपने, एंड देन यू आर सेइंग, हाँ, डाटिव केस में अपन ईएन लगा देते हैं। रुको तो सही दादा, रुको एक बार, थांबा, ठीक है। अभी 1 मिनट में आपको ऐसा आंसर दूंगा कि आप सब समझ जाओगे कि कहानी क्या है, ठीक है। मेरे पास है, आई हैव ich erhalte die Antwort in meinem Kopf। आ रहा हूं मैं, 2 मिनट के अंदर आपकी चुटकी बजा के प्रॉब्लम सॉल्व है। This Rosa start completely, it's a noun। कहाँ एडजेक्टिव लगा रहे हो? कौन सा एडजेक्टिव है इसमें? पिंक सिटी, द नेम, इट्स कंप्लीटली अ सिंगल नाउन। बात खत्म, एंड द एंड आंसर। ओके, एक नाउन है बाबा, पिंक सिटी मेरे शहर का नाम है, जयपुर। रोजा स्टार्ट है, इट्स द नाउन। यहाँ पे कोई एडजेक्टिव की बात ही नहीं है। कहानी जबरदस्ती में एडजेक्टिव अपन घुसारे जा रहे, पता नहीं क्या और क्या हो गया, तूफान आ गया। एडजेक्टिव है नहीं सर, तो एडजेक्टिव एंडिंग का सवाल ही नहीं है, बात ही खत्म, रूल्ड आउट। यस सर। जैसे एक और सेंटेंस है मेरे पास में, हाँ, मान लो सेंटेंस है आई हैव द पर्पल बॉटल, आई हैव द पर्पल बॉटल, ठीक है। तो इश हाबे देन, इसमें तो लीलन हो देन जाना। तो पहली बात आएगा नहीं, फ्लैश है, डी फ्लैश होता है। पहले आप सेंटेंस, जर्मन का सेंटेंस लिखो सबसे पहले, फिर करते हैं अपन बात। तो दी आ जाएगा, ठीक है सर। दी, हाँ बोलो ना, क्या आई हैव द पर्पल बॉटल, इश हाबे डी, इशाबे दी। अब लीला आना चाहिए या फिर लीलन कर देंगे अपन? रुको तो सही 1 मिनट, क्या हो रहा है? नहीं, इसमें तो शायद नहीं होगा। ओके सर, मेरा क्लियर हो गया डाउट। ये बोल दो ना जो है, तो एक बार सब बच्चों का और तुम्हारे माध्यम से बाकी का भी भला होने दो। इसमें लीला के बाद में अपन ई लगा देते थे, बेस्ट टेम्प्ट आर्टिकल, जो बेस्ट टेम्प्ट एंडिंग्स होती थी ना, तो LIL की जगह LILE हो जाएगा क्या? नहीं, कलर का नाम ही लीला है, तो उसको आप क्या कर दो, उसके कलर के नाम की स्पेलिंग थोड़ी चेंज कर दोगे। तो इसको अपन एडजेक्टिव की तरह नहीं लेते क्या कलर्स को? कुछ नहीं है, ये देखो ना, लीला बॉटल आ गई, नाउन हो गई, बात खत्म हो गई, बस पर्पल बॉटल। अच्छा, ठीक है। अभी रेड होता तो सीधा ही अपन रॉट लिख देते हैं, है ना? क्या? अगर पर्पल बॉटल की जगह रेड बॉटल था, तो अपन डायरेक्ट उसको भी एक नाउन बना देते। सुनो सुनो सुनो, मैं समझ गया अब तुम कहाँ पहुंचना चाह रहे हो ना, मैं समझ गया तुम्हारी प्रॉब्लम कहाँ से है। आपको जर्मन भाषा के बारे में अभी जहाँ पे 2 वोवल आ रहे होते हैं ना, वहां पर भी दिक्कत होती है, क्योंकि साउंड के अंदर प्रॉब्लम आने स्टार्ट हो जाती है। मैं समझ गया आप क्या बोलने वाले हो, कि रोटे फ्लाशे लिख रहे हो सर यहाँ, तो आप हाँ, ये बोल रहे हो ना,
यस सर। तो जो आपकी कहानी निकल के आ रही है ना, वो यहाँ से ये निकल के आ रही है कि रोजा ए, मतलब इसके अंदर आप जब ए एंडिंग लगाओगे, ठीक है, ये भी दो ओवल का कंप्लीट आता है, ठीक है। तो आप उसका 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 उसके अंदर साउंड क्या बोलोगे फिर? ए करके। देखो मैं इसका एक थोड़ा सा एग्जांपल देके समझाने की कोशिश करता हूँ। आपने दा लिया और आउट लिया, तो इसकी जो संधि करी, इनको दोनों को जो मिला करके आपने वर्ड बनाया, हाँ, वो क्या बोलते हैं? इसका वर्ड बनाओ दाराउ। डाउ। आर लगा देते हैं बीच में एक, तो जहां पर भी दो वोवल है उसको उसको कॉन्फ्लिक्ट करेगा वो कि आवाज क्या निकालूं, साउंड क्या निकालूं। बेसिकली मैं इसमें लीला ए एंडुंग लगा दूं, इसमें लीला ए, तो मेरे को बोलने में, मेरे टंग में ट्विस्टिंग हो जाएगी ना फिर मेरे। मैंने जब पिछली वाली जो मास्टर क्लास थी, मैंने क्या बताया था कि ये लोग बहुत लॉजिकल हैं और ये लोग क्या है कि हर चीज को सोच समझ के डिजाइन किया हुआ है, ठीक है। रोड के अंदर यहाँ पे कोई वोवल का कॉन्फ्लिक्ट नहीं हो रहा था, उन्होंने उसको लगा दिया, ठीक है, तो रोटे फ्लाशे कर दिया उसको। बट स्टिल अगर आप चाहो तो आप उसको एक लाल रंग की बोतल को एक सिंगल नाउन बन मान के और बिना एडजेक्टिव एंडिंग के यू कैन यूज, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। रोजा स्टार्ट इज ए सिंगल नाउन, इट्स ए सिंगल नेम, यू कैन यूज, तो आपको कोई भी आपके नंबर नहीं कटने वाले हैं उसके अंदर। बाकी जो मेन रीजन है वो रीजन है कॉन्फ्लिक्ट ऑफ द वोवल्स, कि आप रोजा ए, अब मतलब जैसे मान लो लास्ट में मैंने इसमें आपके कहने से मैंने एंडिंग लगा भी दी, तो क्या हो रहा है मेरा यहाँ पे? तो क्या बोलूं इसको मैं? रोजा बोलूं, रोजा ये बोलूं, या मतलब जबरदस्ती में ही, मतलब मेरे एक दिमाग में हमेशा ये रहेगा कि यार इसका साउंड क्या है, इसका प्रोनाउंसिएशन क्या होने वाला है। जस्ट बिकॉज ऑफ दो सिंपल रीजंस इट इज लाइक ओमिटेड। यस सर। क्या है आपको और बताता हूँ एक बात, क्या है कि हैं रूल्स हैं, एडजेक्टिव एंडिंग के रूल्स हैं, करेक्ट है, बट क्या है कि ऐसी सुविधा जिससे कि हमको असुविधा होने लगे थोड़े टाइम में, समझ आ रही बात? ऐसी सुविधा जिससे कि हमें बोलने में ही, उसका भाषा का जो उच्चारण है उसको करने में ही हमें दिक्कत आने लगे, तो उस जगह को कई जगह पे ऐसी चीजों को ओमिट कर दिया जाता है, ठीक है। यस, द नेक्स्ट वन। हाँ सिमरन पूछो। जैसे कंपैरेटिव सुपरलेटिव डिग्री आती है ना A2 में, हाँ, तो उसमें कंपैरेटिव में एक आस कनेक्टर होता है कि कंपेयर करने के लिए। हाँ, तो उसमें सिर्फ जाइन वर्ब का ही बताया गया, अगर उसकी जगह जाइन वर्ब की जगह कोई दूसरी वर्ब अगर कॉन्ट्रीब्यूट हो तो आल्स के बाद कौन सा नाउन? सही, वेरी गुड। तो सिमरन का क्वेश्चन बहुत वैलिड है, मतलब इसकी क्यूरियोसिटी बहुत अच्छी है कि आज के साथ में सर आपने जाइन वर्ड ही बताई और कोई से दूसरी वर्ड भी नहीं बताई, ठीक है। तो सबसे पहला देखो, फंडामेंटल से चलते हैं। राम जो है वो श्याम से बड़ा है, राम इज बिगर देन श्याम, ठीक है। रमेश जो है वो क्लूगर है, मतलब इंटेलिजेंट है सुरेश से, सो रमेश इज क्लेवर देन, ठीक है। जयपुर जो है वो बीकानेर से छोटा है या बड़ा है, तो जयपुर इज बिगर देन। और तो आप पहले ये बताओ मुझे कि ऐसा कोई सेंटेंस तो निकाल के लाओ जिसमें बिना जाइन वर्ब के आप कंपैरिजन कर रहे हो, पहले तो वो बताओ, उसके बाद में अपन और बातें करेंगे, नहीं समझे? इंग्लिश में सारी बातें कैसे चल रही है, जयपुर इज बिगर देन बीकानेर, राम इज इंटेलिजेंट, मोर इंटेलिजेंट देन श्याम, सुरेश इज स्मॉलर देन रमेश। तो पहले तो वो जो उसमें क्या लिख दिया कि वहां पे उन्होंने ये लिखा था साहब, गीता में लिखा था कि ओनली जाइन वर्ब ही यूज करेंगे, उसको तो छोड़ो एक बार। अपन तो फंडामेंटल से बात करते हैं। जब अपन कम्युनिकेशन कर रहे हैं ना, अपन हिंदी में, इंग्लिश में, लाइक व्हेनेवर वी आर टॉकिंग इन इंग्लिश और हिंदी, सो यू जस्ट पुट अप अ सेंटेंस वेयर देयर इज अ कंपैरेटिव डिग्री इज लाइक यूटिलाइज्ड, टेल मी इन हिंदी और इंग्लिश, देन आई विल टेक दैट केस कि सर देखो ये सेंटेंस था, ठीक है, इसके अंदर अब देखो मैंने ये इज़ामार की जगह या कुछ मैंने दूसरी चीज लगा। अभी जैसे मेरम ने श्राइबन वर्ब है, वे श्राइबन ही लिख के ले सकते हैं कि he writes better than him, जैसे श्राइबन नई वर्ब आई, इसका मैंने आज तक मैंने देखा नहीं कंपैरिजन वाला, सिर्फ जाइन से ही करते हैं। नहीं लिखो ना, लो ना, आओ लो आप सेंटेंस आ गया और आप बोल रहे हो एज राइट बेटर आल्स,
यही मेन पॉइंट है कि आल्स के बाद जो वो आएगा डाटिव में जाएगा, अकुजाटिव या नॉमिनेटिव। ये नॉमिनेटिव आल्स के बाद नॉमिनेटिव। यस ओनली नॉमिनेटिव शायद बेसन आल्स इश, वो मेरे से बेटर लिखता है, वह लड़का ही राइट्स बेटर एज कंपेयर टू मी। तो मैंने सेंटेंस लिख दिया, आप बताओ उसमें कुछ कंफ्यूजन है तो बन गया सेंटेंस भाई। क्योंकि मुझे कंफ्यूजन है कि आल्स के बाद सिर्फ नॉमिनेटिव ही यूज करते हैं, अकुजाटिव और डाटिव भी ले सकते हैं। नहीं ओनली इश, या that will be there only. You cannot use because like what they say is like he writes better than me, he writes better than me or but यहाँ पर क्या हो रहा है कि als जो आ रहा है, they are using als as I, they are utilizing in German language they are utilizing als as I, like he writes better as I, so they always use this nominative only. आज के बाद में आप कुछ भी यूज नहीं कर सकते, ठीक है। और any other hands are like being raised, someone like from B1 or Hiram is again, yeah Hiram। सर आपने बात बताई थी कि जर्मन जो है काफी लॉजिकल रहते हैं चीजों में और ऐसी चीजें नहीं बनाते जिससे कंफ्यूजन हो अननेसेसरी का, है ना। तो फिर इन लोगों ने ऐसा कैसे बनाया कि कॉमा की जगह डॉट लगा रहे हैं और डॉट की जगह कॉमा लगा रहे हैं? I don't want to take this question actually। ये यार उनकी मर्जी है यार, ठीक है। तो नहीं मैं मतलब उनके सिंबल्स हैं, उन्होंने अपने हवाई जहाज, अपनी इंजीनियरिंग सब उस तरह से डेवलप करी हुई है, तो उनकी सारी मशीनरी अब उस तरह से डेवलप हो चुकी है, तो अब वो दे कैन नॉट चेंज। तो दैट इज मतलब इंग्लिश में तो कॉमा का कॉमा ही रहता है, सिर्फ मैथ्स में वो अपने चेंज हो जाता है ना। ओनली इन कैलकुलेटर दे यूज दिस, दशमलव की जगह वो कॉमा यूज करते हैं बस, और देखो कोई ज्यादा दिक्कत नहीं। बाकी जब वो लेटर लिख रहे हैं तब वो कॉमा को कॉमा ही लिखते हैं, वहां पे वो कॉमा को उस पंक्चुएशन मार्क को चेंज नहीं किया उन्होंने, ओनली इन कैलकुलेशन, इन देयर कैलकुलेशन, एंड दैट इज लाइक इट्स लाइक नॉर्मल, वो उनकी इट्स अप टू देम, ठीक है। वो अब उनकी भाषा को उसमें कॉमा यूज करेगा तो इट इज अप टू देम, ठीक है। और एनीवन एल्स? एक और चीज था। हाँ बोलो हिरम। सर जैसे अभी तक जो लेटर वगैरह लिखने अपन ने सीखे, उसके अंदर अपन सब्जेक्ट वगैरह नहीं लिखते क्या? लेटर का सब्जेक्ट या सेंडर्स एड्रेस, रिसीवर एड्रेस, क्योंकि अपन छोटे थे तब तो सारे लेटर में लिखते ही थे। हाँ, आप ईमेल राइटिंग करना स्टार्ट कीजिए, उसके अंदर आप चाहे तो बेटरफ लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। वो ऑफिशियल लेवल के लेटर होते हैं। आई कैन अंडरस्टैंड योर क्यूरियोसिटी। आप एक बार B2 लेवल में आइए, फिर देखिए आपको सब लिखाएंगे आपको। अच्छा आएगा, आपको बेटरफ भी लिखना पड़ेगा, आपको सब कुछ अपने एड्रेस पूरा एक चीज सारा, ठीक है। ओके सर जी। एनीवन एल्स लाइक फ्रॉम A2 और B1 लाइक हैविंग सम डाउट्स? Anyone who wish to speak can unmute first of all himself or herself, because if you are not unmuting yourself, then I might not be able to listen to you. Any other one like having any doubt? So if I read all the participant name here, so like new candidate who approached us are like Shubham Sharma, Shubham Sharma, सुनील शेखावत। आप ऑलरेडी हाउस बिल्डिंग के लिए कनेक्टेड स्टूडेंट हैं, आपकी मीटिंग हुई थी। सुनील शेखावत, शुभम शर्मा B1 कैंडिडेट्स हैं। तो इन पर्सन अगर कुछ मैं एक बार जिन लोगों ने लेट ज्वाइन किया है मैं उनको वापस से बता देता हूँ। ये हफ्ते में ये शुक्रवार के दिन हम मिलते हैं 3 बजे के आसपास। जो लोग भी नए ज्वाइन किए हैं, आप अपने डाउट्स पूरे हफ्ते भर कलेक्ट किया। अंकिता देशमुख कौन है? आप पूरे लाइक यू गाइस कैन कलेक्ट योर डाउट्स, A1 A2 B1 B2 जो भी आप पढ़ रहे हैं, आप अपने डाउट्स कलेक्ट कीजिए एंड फ्री ऑफ कॉस्ट हम कोशिश करेंगे कि आपकी क्वेरीज को रिजॉल्व किया जा सके इस मास्टर क्लास में। तो जो लोग भी नए, जिन लोगों ने भी ज्वाइन किया है, कैन आस्क तौशिक सिद्दीकी class, yeah, anyone else who would like to ask any queries, like you are most welcome guys, like I'm here। हाँ हिरम बताओ। सर आपने पिछली बार माइने फ्राउ और माइने एफ्राउ में काफी अच्छा डिफरेंस बताया था,
तो ऐसा ही कोई डिफरेंस ओपा और ग्रॉस फाटर में भी होता है क्या? नहीं यार, ऐसा क्या डिफरेंस है? ओपा इज, आप बोल सकते हो यार, सेम ही चीज हुई ना। आपको मैं बता दूं और थोड़ा क्लियर कर देता हूं। देखो, ओपा इज कंप्लीटली, जिसे कहते हैं ना कि ओपा इज लाइक बिल्कुल प्योर जर्मन ओपा। यस सर। और ग्रोस फाटर का मतलब जैसे कि वो इंग्लिश से थोड़ा सा उसका वो टच ले लिया और उसको वो करके थोड़ा कि हाँ भाई समझ में आ जाए ग्रोस फाटर कौन होते हैं, तो बट Yes. ओपा इज प्योर जर्मन, बस इससे ज्यादा आंसर नहीं है इसका। ओके सर, ओके सर, थैंक यू। एनीवन फ्रॉम B1? और चलो ठीक है, मास्टर क्लास तो होती है। अब मुझे लग रहा है शायद ज्यादा क्वेरीज नहीं है, तो मुझे भाषण देने की आदत है, तो मैं थोड़ा सा आपको स्पीच देता हूँ, थोड़ा कुछ आपको बताता हूँ जीवन के बारे में, क्योंकि मुझे लोगों को मोटिवेट करना बहुत अच्छा लगता है। और उसका सबसे बड़ा रीजन ये है कि मुझे कोई किसी ने मोटिवेट नहीं किया एक्चुअली, ठीक है। तो मुझे इसलिए लोगों को मोटिवेट करना सबसे अच्छा लगता है, क्योंकि मुझे कोई किसी ने मेंटोर नहीं किया, मुझे कोई मेंटोर नहीं मिला, और मेंटोर नहीं मिलने के चक्कर में लाइक आज अपनी जिंदगी में 10 साल पीछे चल रहा हूँ और लोगों से। बट कोई नहीं, हमें नहीं मिला, लेकिन हम तो बने किसी के लिए, हम तो किसी की उंगली पकड़े कम से कम। यदि हमने कोई अनुभव ले लिया जीवन में, और अगर हम भगवान ने थोड़ा सा लायक बना दिया, तो एटलीस्ट आई शुड हैंड होल्ड द यंगस्टर्स एंड आई शुड ट्राई टू यू नो guide them, I should try to help them, I should try to support them. So now, तो क्या अभी बात करते करते ही अभी कोई क्वेरीज नहीं है, तो मुझे दिमाग में आया कि तो जो आपका सर्कल है ना, जो आपका नेटवर्क है, और जो आपका क्लोजेस्ट सर्कल है, उसमें आप 5 लोगों को एक बार सोचो, उनके नाम सोचो, सब लोग। आपको जो क्लोजेस्ट सर्कल है ना, जिसको मतलब आप बोलते हो भाई ये मेरा भाई है, भाई ये मेरा यार है, ये मेरा मतलब जान दे दूं, मतलब क्या ही कर दूं मैं इसके लिए। सोचो एक बार 5 लोगों के नाम आपके सर्कल में, क्लोजेस्ट, जो क्लोजेस्ट सर्कल है उसमें सिर्फ। एवरीवन प्लीज थिंक अबाउट 5 नेम्स इन योर क्लोजेस्ट सर्कल, ओके, व्हिच इज योर इमीडिएट सर्कल, एंड जस्ट ट्राई टू रिमेंबर देयर नेम्स, ओके। आपका जो सबसे इमीडिएट सर्कल है उसमें 5 लोगों के नाम आप अपने मन में, जैसा होता ना याराना है भाई, ऐसा करना है, जैसे करना है, सोच लो, लिख लो। हाँ, आप बताएं आपके 5 लोगों के नाम। हाँ ठीक है, आप बताएं 5 लोगों के नाम। हाँ अर्जुन, हाँ हाँ ध्रुव, हाँ, आप बताएं 5 लोगों के नाम। फैमिली, ओके। मनप्रीत आप बताएं एनी 5 नेम्स, इफ यू कैन नेम एनी 5 पीपल। Sir, Sarandeep, Devinder, and Dipanshu. Okay. Just 3. And Kevin is there with us. Kevin. Shubham, could you please name 5 people in your closest and immediate circle? Yeah, sir. नीरज, मेरे चाचा और मेरे घर वाले सर, बाकी तो और कोई नहीं है। बहुत बढ़िया, very good. Uday Verma, if you could name 5 people in your immediate circle. Okay, he has named already. Hiram, any 5 people in your immediate circle? Sir, I have family members only. My father, mother, Okay. grandmother and all. Good. तो ये बात पूछने के पीछे और बताने के पीछे जो भावना है वो यही है। देखो दोस्तों, हमारी तो लाइफ क्या कट गई कैसे भी करके, मतलब किसी ने ज्ञान ही नहीं दिया, मार्गदर्शन भी नहीं किया, मेंटोर भी नहीं मिला, तो हम तो कैसे भी करके चलो अच्छे मतलब आ गए यहाँ तक। लेकिन मेरे को आप सभी को ये मैसेज है कि आपके जो क्लोजेस्ट और जो इमीडिएट 5 लोग हैं ना, कोशिश करना कि वो बहुत अच्छे हैं, कोशिश करना कि उनमें कोई ऐब ना हो, ठीक है। कोशिश करना कि वो लिटरेट हो, कोशिश करना वो एजुकेटेड हो, कोशिश करना कि वो एस्पायरिंग हो। एस्पायरिंग का हिंदी में मीनिंग होता है कि जिनमें जील होती है कुछ करने के लिए, ठीक है। क्योंकि कुछ लोग क्या है कि एस्पायरिंग भी नहीं होते, एस्पिरेशनल भी नहीं होते। अगर जो लोग जिनके अंदर एस्पिरेशन नहीं है ना, प्लीज ऐसे लोगों के साथ में दूरियां बना लो आप लाइफ में। इसलिए क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि हमारा कट गया भाई, तुम्हारा ना कटे, ठीक है। सिंपल है, वेरी सिंपल, ठीक है। हमारा जो नुकसान हुआ ना, वो मेरी आने वाली जो जनरेशन है ना, जो मेरे स्टूडेंट्स हैं, जो भी मुझसे जुड़ते हैं, अपना टाइम देते हैं फ्राइडे को, तो ये बात इसलिए बता रहा हूँ, ये जो इमीडिएट 5 लोग हैं ना आपकी लाइफ में, अगर ये एस्पिरेशनल नहीं है, एस्पिरेशनल का मतलब ये होता है कि उनके कोई विजन नहीं है, अगर उनका कोई ड्रीम नहीं है, या वो ड्रीम के लिए स्ट्राइव नहीं कर पा रहे हैं,
ड्रीम तो है हेलीकॉप्टर खरीदने का, लेकिन सोते हैं 24 घंटे या फिर बस पिक्चर देखते हैं, समझ रहे हो? तो यू ट्राई टू हैव एस्पिरेशनल पीपल इन योर इमीडिएट सर्कल. जो इमीडिएट 5 लोग आपके कांटेक्ट में है, दे मस्ट बी हाईली एस्पिरेशनल, दे मस्ट बी विजनरी, दे मस्ट बी स्ट्राइविंग फॉर अचीविंग समथिंग. ओके, उनके अंदर इस तरह की खुशबू आनी चाहिए कि हाँ यार, मैंने A1 में एडमिशन लिया है, या मैं A1 पढ़ रहा हूँ, या मैं B1 में एडमिशन लिया है, मैं, हाँ ठीक है, आई कैन डू इट. इस तरह के सोच रखने वाले वो 5 लोग आपके सर्कल में आप कोशिश करें उनको रखें, ठीक है? तो उससे आपकी लाइफ जो है वो बहुत खुशनुमा होगी, और बहुत जल्दी आप लोग जो है यू विल रीच टू योर गोल. आपको अपने गोल में जल्दी पहुंचने में हेल्प मिलेगी. नहीं तो क्या होगा कि जो एस्पिरेशनल लोग नहीं है ना, उनकी जिंदगी, उनको तो कुछ करना नहीं है, तो वो यही कोशिश करेंगे कि वो आपके टाइम भी आकर के दे विल ट्राई टू किल योर टाइम एज वेल, ठीक है? और कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जो जीवन भर उनके पास में दुख होते हैं, बहुत सारे उनके पास दुखड़े होते हैं, दुखड़े, ठीक है? कुछ ऐसे भी होते हैं कि कुछ भी हो जाए लेकिन उनके दुख खत्म नहीं होने वाले, या कंप्लेंट्स, उसको कंप्लेंट्स भी कह सकते हैं, वी कैन से देम कंप्लेंट्स एज वेल. So such people are also toxic. Anyone in your immediate 5 people is all the time is like complaining, all the time complaining, ठीक है? प्लीज उनसे दूर हो जाओ, उनके दुखड़े हैं ना, सही बता रहा हूँ मैं, वो तुम्हें कहीं का नहीं छोड़ेंगे वो, ठीक है? दूर हो जाओ उनसे, ठीक है? उनसे दूर हो जाओ. आपकी एज है, आपको ग्रोथ करनी है, आप बहुत ही उसमें एक आपकी जवानी के उस पे हो आप, ठीक है? तो जो लोग एस्पिरेशनल नहीं है उनसे दूर हो जाओ. जो लोग दिन भर कंप्लेंट करने के सिवाय कुछ नहीं करते हैं, उनसे दूर हो जाओ, ठीक है? क्योंकि वो कंप्लेंट कर करके आपके सामने भी ऐसी पिक्चर बना देंगे इस दुनिया की कि दुनिया खराब है. आपको ये फील करवा देंगे वो, क्या कि दुनिया बेकार है, कुछ मत कर तू, क्योंकि दुनिया बेकार है. प्लीज इस तरह के 2 प्रकार के लोगों से इन योर इमीडिएट सर्कल make distance, keep distance. So final call guys, like any other questions related to A1, A2, B1, B2, any questions you guys have, you can raise your hands and I would be very glad to, you know, serve your queries or like serve your questions. देखा था कि A2 के जो वर्ड चार्ट होता है वो अलग होता है, B1, B2 का डिफरेंट होता है, ऐसा क्यों? नहीं, ऐसा कुछ नहीं. वोट चार्ट्स जो है वो ऐसे कोई डिफरेंस नहीं होता है, बट क्या होता है कि जैसे एक वर्ब है माखन और एक वर्ब है टुन, तो क्या होता है वो धीरे धीरे हर लेवल पे आपसे कुछ नई चीजों को इंट्रोडक्शन करवाते जाते हैं, ठीक है? क्योंकि A1 लेवल पे सारा आपको सारी चीजें नहीं दे सकते. अब A1 लेवल पे मान लो आपके वर्ब आ गई गेलेगन हाइट, या मान लो ये जो नाउन आ गई गेलेगन हाइट, ठीक है? या एक वर्ब होती है गेलिंगन, A1 में आ गई, तो जो बच्चा A1 में है उसको सर पे लोड आ जाएगा यार, आई डोंट वांट टू टेक इट, भाग जाएगा वो पढ़ना छोड़ करके. A1 A2 जो है वो बिगिनर लेवल है, B1 जो है वो इंटरमीडिएट जो लेवल हो गया वो हो गया आपका, ठीक है? B2 उसका थोड़ा सा अपर लेवल हो गया है, और C1 बिल्कुल आप स्पेशलिस्ट बन जाओगे, आप एक्सपर्ट बन जाओगे. तो हर लेवल में क्या है, इट विल प्रोग्रेस, बट इट विल प्रोग्रेस ग्रेजुअली. यू विल लर्न more and more, you know, you will collect more and more vocabulary. So it is just like that. My vocabulary which is today, it was not the same when I was in 5th class, because I was like having the exposure to the limited text, to the and 8th and then 9th, and so as soon as like I was, you know, learning, so I was growing. So as such there is no problem, let it be. ठीक है. सो फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम. आप लोग जुड़े मुझसे, अच्छा लगा मुझे, ठीक है? और आपको कोई भी प्रॉब्लम हो, पर्सनल, प्रोफेशनल, जर्मन, हिंदी, इंग्लिश या और भी कुछ भी, तो यू कैन राइट अ टेक्स्ट. आई एम लीविंग हियर this YouTube channel link, Euro Career and then info. So what you could do is that like you can go there in this channel, you can get our contact details, and any problems, personal, professional, German, job, or anything you are facing in your life, you can simply connect with us and let's there we'll try to resolve your queries.
Okay, so haben Sie bitte einen schönen Tag. Tschüss, auf Wiedersehen. Tschüss.